mentality? I think the people, what I look for in people is the confidence. Yeah, this is the one. Right. फिर आप इंग्लिश में बात करें या आप हिंदी में बात करें, फिर फर्क नहीं पड़ता. Yeah. किस तरह से आप अपने आप को परसीव करते हैं, दैट ऑल मैटर्स, राइट. क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही आप सामने वाले को आप में अट्रैक्टिव बनाती है और वही लोग सुनना चाहते हैं. कैंसर की तो सबसे खराब बात ही यही है पता ही नहीं चलता. पता ही नहीं चलता. माय मदर इन लॉ वाज डायग्नोज्ड विद cervical cancer. Okay. Yeah, and I lost her 4 years back. Oh, sorry to hear. Yeah. So we got to know, like me and my husband, we got to know about it when she was at stage, last stage, yeah, third last stage. Third, so I got to know at that time. और यहाँ मुरादाबाद में पता ही नहीं चला. वो पूरा टाइम ये बोलते रहे कि स्टोन है. Oh God. Yeah, so the cancer is like. उन्होंने स्टोन को वो बोलते चले गए. We have one of the personality जिनको आप जानते भी होंगे और आज जान जाएंगे क्योंकि उनके लाइफस्टाइल के चर्चे और उनके कम्युनिकेशन के चर्चे और उनकी सारी लीडरशिप के चर्चे आप आज सुनेंगे और वैसे भी हमारे मुरादाबाद में हैं ही. So today I am just bringing one of the personality whose name is Manvi Tomar. So big round of applause for the Manvi Tomar. So yeah, hello Manvi. Hi Maz, yeah, how are you? Welcome to the Mac Talks podcast. Thank so you. I just want to ask you that today as you just are here, तो आप मुझे बताएं कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है या फिर जो आप एज अ हेड और लाइफस्टाइल एकदम एक्सपर्ट हैं और काफ़ी चीज़ें आपकी हैं जो मुरादाबाद में काफ़ी चर्चाओं में हैं और इसी वजह से हमने आपको उस अपने व्यूअर्स के लिए बुलाया है कि आप उन सारी चीज़ों को डिस्कस करें. तो हम स्टार्ट करते हैं आपके लाइफस्टाइल से कि आप लाइफस्टाइल के बारे में क्या सोचते हो, लाइक व्हाट शुड इट बी इन वन ऑफ द पर्सन. See, I think we have people. If we have people, then we have been raised in a good environment. इंसान की पहचान उसके इस बात से होती है कि उसके दोस्त कितने हैं. Exactly. एंड आई थिंक जिसके पास लोग हैं वो ही सबसे ज्यादा कामयाब है और उसे ही लोग जानते हैं. Yeah, exactly. किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को इफ वी आर गोइंग टू लुक आउट how they have been raised by their parents first and what sort of people do we have into our lives. Yeah. The friends we sit with or the workplace where we work with, right, or the environment, the atmosphere that we are living with, the people that we have into our lives. So that's all ultimately how I think all combines our personality. आपके मतलब ऐसे बात से लग रहा है कि like you have faced many like backs and then such kind of things. आप अपनी लाइफ का कुछ बताएं कि like how did you grown up, where did you grown up and like how did you just overcome and जो आपके अपनी लाइफ में add on करी हैं चीजें वो किस से इंस्पायर हो के क्यों करी या फिर obviously as I think that your father is somewhere military or something if I'm not wrong. Yeah, so I have been raised up by my grandparents. Okay. So my grandpa was in army. Yeah. So the whole atmosphere was English sort of at my home. Yeah. तो सुबह उठना, बाबा के साथ रहना, उनके साथ ही स्कूल जाना आना, सब कुछ करना. I have been raised by my grandparents. ये बात मुझे 2022 की याद थी somewhere and it clicked just suddenly in my mind. Oh, by the way, you have a good memory then. Yeah, just click in my mind कि हाँ that one of the parents or I think one of the family member like belongs to any army family. Yeah. So क्या मतलब कैसा माहौल रहता था आपका? Basically, yeah, I was under shadow of my grandparents only, and my grandpa, he was into army. Okay. And then he worked as a teacher also. Okay. Yeah. So the atmosphere, like the way I have been raised up, it was sort of English. Okay. और उस टाइम पर इंग्लिश में बच्चे बात करते हैं. आज का फोकस लोगों में ये नहीं है कि बच्चे को आता कितना है. Okay. फोकस इस चीज पर ज्यादा है कि आप इंग्लिश में बात कीजिए. Okay. जो एक ओवरथ्रो किया गया है कि आपको अंग्रेजी में ही आनी चाहिए. Okay. और जबकि सच बात यह है कि ठीक से लोग अभी हिंदी में भी बात नहीं कर पाते हैं. Exactly. Right. तो इंग्लिश बोलो वो जो एटमॉस्फेयर तो था मतलब कुछ टफ एटमॉस्फेयर रहता था बिकॉज़ पीपल जस्ट थिंक दैट आर्मी के अगर बच्चा है no, तो no, I was very pampered child. I was very pampered child at my home because you were like kind of the granddaughter. Yeah, so I was that's granddaughter why. and I was the only one in my family. Yeah, you were the only one. Yeah. तो वो सारी चीजों को मेंटेन करना उस टाइम पे and then you just how did you come in Muradabad? Okay, how did I come to Muradabad? Actually, after my
parents' death, my Bua and Fufaji took me here into Muradabad, and they raised me with my grandparents only. Okay. Yeah, and the most lovable parents one can have. Okay. They were the two figures who like put me up in a very good way, and I have been raised by them also. Okay. In a very generous So way. let's just start that talk about the part of your skill of communication, and you just have a very good communication skill, and then you obviously train some of the people as well. तो आप जो एज अ हेड अभी जो वर्क कर रहे हो, सो लाइक किस तरीके के आप लोगों को फिल्टर आउट करते हो, बीइंग द हेड मेंटालिटी और बीइंग द कम्युनिकेटिव मेंटालिटी? I think the people, what I look for in people is the confidence. Yeah, this is the one. Right. फिर आप इंग्लिश में बात करें या आप हिंदी में बात करें, फिर फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से आप अपने आप को परसीव करते हैं, दैट ऑल मैटर्स, राइट? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही आप सामने वाले को आप में अट्रैक्टिव बनाती है और वही लोग सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। हमारा खुद का भी इंटरेस्ट सुनने में किसको आता है? मगर बहुत से लोग सुनते नहीं हैं, यू नो। एक्चुअली आजकल क्या है ना, लोगों में एक भीड़ है कि आप अपनी जल्दी जल्दी बात खत्म करें तो मैं अपनी सुनानी शुरू करूं। जब वो चीज खत्म हो जाएगी, हम सुनना शुरू करेंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोगों को जानने अच्छे से सीख जाएंगे। नहीं, जैसे ऑब्वियसली लाइक आई जस्ट से टू माय पीपल और टू माय नोन वंस, और यू आल्सो वुड हैव जस्ट कहते होगे आपके ये चीज ठीक करो, वो चीज ऐसे गलत है, सो डू दे जस्ट टेक यू सीरियस? They don't? No, they do. They do. Everybody does that. Okay. Yeah, very good. तो क्या women uplifting women is my favorite genre. Okay. So कैसे आप उन्हें बताते हो, कैसे समझाते हो आप उन्हें? किस चीज के लिए? कोई भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल हुआ, या आपका जो एक्सपर्टीज है कि भाई ये कॉन्फिडेंस यहाँ लैक कर रहा है, या कम्युनिकेशन यहाँ लैक कर रहा है, या जो भी चीज होता है, तो आप कैसे उनको ये सारी चीजों के बारे में एक अपना एक फ्रेंडली नेचर में कैसे बताते हो? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमसे कभी गलती होती है तो हमें उस चीज से डरना नहीं चाहिए कि अब कैसे होगा। आप दोबारा ट्राई कीजिए, उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मुझसे हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल टुवर्ड्स माय थिंग्स, और फिर हम दोबारा उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो टूट के दोबारा बनाई ना जा सके। Okay. Yeah. And confidence is among one of them and topmost thing. Obviously. Yeah. And being a like lady or as a kind of वुमेन, तो आप कितना इस चीज को सपोर्ट करते हो कि हाँ मतलब जैसे वुमेन होता है, गर्ल होती है कि भाई नहीं डर लग रहा है, बोलना नहीं है, जाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? आई थिंक वीमेन शुड बी आउटस्पोकन एंड दे शुड बी आस्क्ड ऑन टू एवरी प्लेटफॉर्म। और अब तो आप देख रहे हैं सब जगह सभी लोग हैं, सब तो कुछ रहा ही नहीं है। वी आर मैचिंग शोल्डर्स नाउ, राइट? एंड या as I said ki women uplifting women, there's a saying called real queens fix each other crown instead of letting them down. तो I think जो पहले वाला सिनेरियो था that has been changed nowadays, और पहले लोग पसंद नहीं करते थे किसी का कुछ खराब डिस्कस करते थे, अब उसका खराब उसके फेस पे कहने की हिम्मत है। Exactly. And I think that is the best thing that one could have. और उसे ही शायद अच्छा आगे बढ़ना और कामयाब होना मुझे लगता है। कहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके साथ साथ जितने लोग हैं वो सब आगे बढ़ रहे हैं। Okay, so like I can say that the whole team you have right now being a head, तो आप उनको सारी चीजें समझा के चलते हो कि like आपको ये सारी चीजें समझनी है, और do you like deal with a head? No. In my professional life, it is something different. Okay. In my professional terms, I have worked earlier also in very schools or like colleges, university. I have some university too, and what I felt is कि सबको अपना काम आता है, और मुझे जाकिर खान की एक बात बहुत पसंद है जो उन्होंने बोली थी कि काम 19 चलेगा, आदमी 20 होना चाहिए। Exactly. Right? तो वो चीज मुझे बहुत घर कर गई कि किसी को काम कम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसान खुद क्वालिटी कैसी है वो बहुत मैटर करता है। This is the thing, like we also feel the same कि भाई काम चलेगा, बट काम सिखाया जा सकता है। Exactly. लेकिन इंसान की क्वालिटी वो थोड़ा सा 20 होनी चाहिए। 20 होनी चाहिए, तभी आप उसको जो है रेस कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हम जैसे आजकल बहुत ज्यादा आउटस्पोकन जैसे आपने बोला होना भी चाहिए, तो लोग अपने रिलेशन को लेके भी काफी वो रहते हैं क्यूरियस कि नहीं बताना नहीं है, या बहुत से लोग जो होते हैं कहते ओपनली बताते हैं। क्या लगता है आपको कि लोगों को अपने रिलेशन के लिए आउटस्पोकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सी आई थिंक सबका अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपने रिलेशंस को लेकर आपको काफी आउटस्पोकन होना चाहिए। जैसे
जैसे किसी भी रिलेशन को लेकर, अच्छा एक वो लाइन है जो मैंने पढ़ी है कहीं पर कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप सब कुछ मत डालिए, नजर लग जाती है। दैट इज नॉट ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग जलते हैं वो ही उस नजर से देखते हैं कि वो नजर लग सकती है। अदरवाइज इफ आई एम सेलिब्रेटिंग माय सक्सेस, if I am not happy with my if I am not happy with my things or whatever I am doing onto my social media, it's for my thing, no? Yeah, exactly. If you're mine or if you're my favorite people, then you will be supporting me in every way. और जो लोग नहीं करते हैं तो they have number of things to say at my back. Go on, cheers, I won't mind that. Yeah, you are too active on social media. Yeah, I'm very extrovert person also. Yeah, it should be. अच्छा, आपको इस कभी चीज के लिए कभी लोगों ने बोला है, किसी ने भी आपके क्लोज ने कि नहीं होना चाहिए, जैसे आपने बोला? बिल्कुल बोला है, तो मुझे मना करा गया है। आप क्या कहते हो? बीइंग लाइक ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है ना वुमेन और गर्ल्स की लाइफ में ज्यादा होती हैं। बिल्कुल कि अरे नहीं ये मत डालो, और या फिर ये चीज पोस्ट मत करो, ये चीज को लाइक मत करो, ये चीज को फॉलो मत करो। मुझे जो लगता है, मैं जो मुझे ठीक लगता है वो मैं बोलती हूँ और वो मैं करती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और रही बात कि क्या वीमेन को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सी आदमी भी हमसे पूछ के नहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ है ना, राइट? तो फिर औरतों के लिए भी हाँ, साथ में बात करना, डिस्कस करना, उस चीज को अप्रूव करना, वो अप्रोप्रिएट लगती है या नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ औरतें ऐसा क्यों कर रही हैं, तो दैट इज नॉट साउंडिंग गुड आल्सो, राइट? एग्जैक्टली। तो इफ फ्रीडम मींस फ्रीडम, देन इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू। ओके, तो जैसे हमारे मुरादाबाद में अभी तो and touch wood, I have got a lot of freedom into my life. It should be, obviously. My husband is very supporting. Yeah, I'm totally like obviously agree with you that the woman should be in this part. कि होना चाहिए woman को like outspoken भी होना चाहिए, उनको अपना सारी जितनी भी हैं, और आई एम इन दिस फेवर के होना चाहिए इस चीज को। Exactly. तो ये चीज, बट हमारे अभी जैसे मुरादाबाद की ऑडियंस है, मुरादाबाद की पब्लिक है, थोड़ा अभी हल्के हल्के अपना रेज अप हो रही है, तो आप उनके लिए क्या सोचते हो? लाइक ऐसा क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? सी एजुकेशन सिस्टम। ओके, जैसे एजुकेशन सिस्टम आई गेस लाइक वी हैव वेरियस स्कूल्स इनटू अ टाउन, राइट? and competition is on peak. What I have seen is but depends on the quality of education that we are giving. We are asking for a lot of money in disguise of fee structure and everything, but whatever we are getting from the parents, that should be implemented too into the education sector as well. Like if मैं बोल रही हूँ मुझे इतने फी स्ट्रक्चर चाहिए और मैं दे क्या रही हूँ, वो भी डिपेंड करता है। The quality of education that we are providing should also be commendable. Okay, so like according to you, where are we lacking? In which thing are we lacking? We are in some rush कि सिलेबस खत्म करना है। Okay. बच्चे को कितना आता है वो मैटर नहीं करता है। Oh, like just completing the lessons. Exactly. They are in hustle of completing everything. Like they are supposed to like wind up the whole syllabus till March. But don't you think that the like schools and all the people, owners and all the head of the schools are also like compulsive because of के parents को भी तो marks का वो रहता है ना, एक रेस है उनका कि मेरे बच्चे के जो हैं 9 this is what you had asked ना कि this is where the parent are also see I am not only into education sector being a faculty or something, I am also a parent too. आप parent भी हो और आप एक education head भी हो, और like obviously I am the head of the education and will be obviously a parent. तो एक हमारे mind में रहता है कि उसके marks के पीछे भागते रहो, तो क्यों ऐसा क्यों हम सोचते हैं बीइंग अ पेरेंट? क्योंकि मार्क्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे कर दिया है ना कि अगर इतना ही रहेगा तो ही आपका बच्चा कहीं सेलेक्ट हो सकता है। फॉर माय किड आई हैव डिसाइडेड इफ ही इज इंटरेस्टेड इनटू फुटबॉल, तो आई विल आस्क हिम टू स्टडी, बी अ 70% चाइल्ड, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू फुटबॉल, गो विद इट। If you are interested into some drawing, painting, fine arts, मतलब मैंने तो ये तक I have just seen that people are just admitting their kids because of the name of the school only. They don't know. They go for brands. they go for brand. Like नहीं हमारा neighbor में अगर उसमें है तो फिर हमारा भी जाएगा, और अगर उनका है तो फिर हमारा भी जाएगा। नहीं, वो तो एक क्राउड वर्क हो गया कि भाई उसने उनको लगता है ऐसा तो हमको भी ऐसा ही लगता है। अब वो करते हैं, पीपल डू दैट। बट आई थिंक कि मेरा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि मेरा बच्चा अगर सीएलजी में ही जाएगा, मे बी आई एम नेमिंग सम स्कूल्स, या मेरा बच्चा शिरडी साई में ही जाएगा या किसी भी स्कूल में स्पेसिफिकली, I am not stick to that. If Rani Pritam is saying कि we will be providing you good education, so definitely I'll send my child to Rani Pritam.
देयर इज नथिंग कि लाइक मैं नहीं भेजूंगी इस स्कूल में कि इसका स्टैंडर्ड कैसा है, या कि मैं रानी प्रीतम को कम नहीं आंक रही हूँ कहीं पर भी। रानी प्रीतम इक्वलेंट बहुत अच्छा स्कूल है, या कोई भी, मैं किसी भी स्कूल को अगर उठा लूं, डिपेंड करता है टीचर क्या पढ़ा रही है, डिपेंड करता है बच्चा कितना सीख रहा है, और उससे डिपेंड करता है पेरेंट की वो घर पर कितना ध्यान दे रहे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्किल्स? Like how much do you think about the skill? See, skill, what I say believe is कि डिपेंड करता है, जब हम हायरिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट, तो उस समय ही हमें देखना चाहिए कि किसका इंटरेस्ट किस चीज में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आजकल देखा है किसी को भी मैथ्स का टीचर बना देते हैं, किसी को भी इंग्लिश का बना देते हैं, और किसी को भी अच्छा तुम ये मॉरल्स भी तुम ही पढ़ा लेना। तो वो जो चीज है वो मुझे समझ नहीं आई आज तक, कि जो जिस चीज का टीचर है उसे आप वही अलॉट कीजिए, वो उसमें शायद बेहतर कर पाएगा। एग्जैक्टली नहीं, हम जैसे अभी क्या है कि स्किल्स में हमारे यंग या एडल्ट लोगों में बहुत ज्यादा इस चीज का एक अवेयरनेस है कि दैट दे शुड बी स्किल्ड, बट व्हाट अबाउट द पीपल लाइक किड्स? कि अभी जो किड्स हैं लाइक 6 ईयर ओल्ड और 5 ईयर ओल्ड और 11 ईयर ओल्ड और 10 ईयर ओल्ड, उनके लिए क्या स्किल्स के सब्जेक्ट्स या लेसन्स या एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पेरेंट को वो जो एक प्रेशर है ना कि शर्मा जी के बच्चे के 80% आए हैं, तो वो जो शर्मा जी का बेटा हुआ, जो कंपटीशन है वो खत्म करना चाहिए पहले। तो वो जो माइंडसेट बनाया हुआ है कि उन फलाने बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए, पहले तो अपने जहन से वो then they run after the graduation for the skills, like no my like kid doesn't know about the skills and the if computer I talk skills. about, I don't know what my kid is gonna do next, but yeah, if I talk about in general, I will say कि बच्चे को सब कुछ थोड़ा 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 आने दो, उसको और जगह भी इन्वेस्ट होने दो। ऐसा नहीं है सिर्फ एकेडमिक्स तक ही सब कुछ रिलेटेबल है, इसके एकेडमिक्स के सारे बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही नहीं बन सकते, दे कैन हैव आल्सो सम अदर फ्यूचर प्लान, सम अदर करियर ऑब्जेक्टिव्स टू, राइट? तो वो सब चलता रहता है। मगर अब भी मतलब आप देखोगे कि नीट में लाखों बच्चा जा रहा है, नीट और जेई में, और उसके I can see the scholars are crowded and like you can see in Delhi also कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के like MNCs बन गए हैं वो लोग। तो ऐसा मतलब क्यों अवेयरनेस नहीं आ रही, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों अवेयर नहीं हो रहे हैं कि like इसमें 0.1% चांस है and they just are running towards these exams instead of skills. Some of the students commit suicide because of this, because of the competition, because some of the may go into depression phase, right? They are eating like tablets, they are onto tablets, they are under therapies or everything, they are going on towards it. And I literally feel like कि ऐसी कोई भागदौड़ नहीं है, कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है, जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट हो पेरेंट को वो परस्यू करा देना चाहिए। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आपने शायद सुना होगा कि एक स्टूडेंट जो कि नीट में उसका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया, और लाइक ही बिकेम अ डॉक्टर एंड ही जस्ट एंटर्ड इनटू द कॉलेज एंड द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज ही अटेम्प्टेड द सुसाइड बिकॉज के उसको ये था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, आई वांटेड टू बिकम businessman or a pilot, but because of the peer pressure like I had to do this and I just like doing all the efforts, I got the Air 1 All India 1 and then I just entered into this, but when I started my first lecture, so I found myself that it is not meant for me, so that he after committed. Doing all of that, he got to know that it is not meant for him, like he had to just in that बिकॉज के उसको पेरेंट्स को प्रूव करना था कि ठीक है मैं नीट तो कर लूंगा, बिकॉज ऑफ दैट वो Air 1 ले आया प्रेशर की वजह से। और फिर उसके बाद जो है उसका जब फर्स्ट डे हुआ एज अ उसमें कॉलेज में मेडिकल एज अ स्टूडेंट, देन ही कमिटेड सुसाइड आफ्टर दैट कंडीशन। ये तक कंडीशन है पेरेंट्स की पीयर प्रेशर की। वही है कि वो अपने मन जो करना था वो पूरा हो गया, और जो खुद की चॉइसेस थी वो पूछी नहीं गई मे बी। हाँ, तो वो जैसे आप जैसे बोल रहे हो कि दैट यू डोंट नो दैट वेयर योर चाइल्ड अबाउट टू लैंड इन दैट करियर। पेरेंट्स शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट द चॉइसेस, वेरी मच अवेयर अबाउट द चॉइसेस। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं अगर नर्सरी क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट करूंगी कि वो कुछ बताए कि उसे क्या करना है, तो वो तो अभी मुझे एस्ट्रोनॉट भी बोलेगा, है ना। हमें बातचीत करनी चाहिए बच्चे के 9th-10th वाले ग्राफ से, तब बच्चे का पता चलता है इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, क्योंकि उसके बाद ही हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें PCM लेनी है या PCB लेनी है। ICSE में तो बहुत 9th में ही कर देते हैं, आगे जाके वो 11th-12th में फिर रहता है, जो मेरे साथ था सिनेरियो। ओके,
तो वही वाली बात है कि अब चीजें काफी डिफरेंट है, तब बहुत डिफरेंट थी। लेकिन एक चीज जो तब से लेकर आज तक कॉमन है और वो रहेगी हमेशा, कि पेरेंट्स को अपने डिसीजन बच्चों के हिसाब से नहीं चलाने चाहिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज में है, भाई लेट देम डू व्हाटएवर दे फील गुड इनटू इट। आप तो ऐसे मतलब केसेस या ऐसे कुछ एग्जांपल्स तो आपके आए होंगे अभी हाँ, तक। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ, आई शुड से। हाँ, तो कोई वेरी आप इंपॉर्टेंट। जैसे है कोई ऐसा आपके उसमें नॉलेज में, तो शेयर करें उस चीज को। नहीं, मेरी नॉलेज में स्पेसिफिकली तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं ये बोलूं किसी ने ऐसा करा है, लेकिन इन जनरल अगर मैं अखबार उठा के देखती हूँ तो फिर हाँ, वो तो उसमें लॉट्स बहुत ऑफ सारे पीपल, दिख लॉट्स ऑफ जाते हैं। पीपल आर हाँ, और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आसपास होंगे जिनमें बच्चे उतना नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। डिप्रेशन वाले इंसान का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो डिप्रेस्ड है और वो स्ट्रेस्ड आउट है। एग्जैक्टली। हमें जब पता चलता है, जब हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है, तब पता चलता है कि अरे आई हैव गॉट डायबिटीज नाउ बिकॉज माय मेंटल हेल्थ इज ऑल गॉन, सब बेकार हो गई वो। तब हमें पता चलता है कि ओके अब तो मेरे को थायराइड भी है, ऐसे आई एम थायराइड पेशेंट नाउ। ओके। या तो अब मतलब पता चलता है आई एम टिल थायराइड नाउ। अभी और कुछ और आगे प्रोग्रेसिव नहीं किया है मैंने बीमारियों में। I got it. Got it. It will be resolved when you will obviously focus. I know it's been 13 years I'm onto it. It's been. तो ऐसा नहीं है कि चेंजेस लाइफ में, तो थायराइड भी स्ट्रेस की वजह से या फिर हार्मोनल चेंज की वजह से ही होता है, राइट। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि अभी वाला जो सिनेरियो, बहुत सारे लोगों को बीमारियों का पता बहुत लेट चलता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम परेशान भी हैं। हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड जब करना शुरू करती है। क्या होता है ना, या तो आप इस ऐसी एज में होते हो कि जहां आप मतलब सिर्फ किसी एक डेस्टिनेशन के पीछे भाग रहे होते हो कि मुझे ये बनना है या ये करना है या ये अचीव करना है, और आपने अपनी उस जो एक ग्रोइंग डिसीज थी बॉडी में, वो आपने उसको अवॉइड कर दिया, और जब वो एकदम पीक पे पहुंच गई तब लाइक अलार्म हुआ कि भाई अरे अब तो तुम्हें ये हुआ। लाइक in my knowledge there is a one person like he was just doing something for kind of business, फिर उसको बाद में पता चला कैंसर का, कि उसको कैंसर था। कैंसर की तो सबसे खराब बात ही यही है पता कि ही वो नहीं पता चलता। ही नहीं चलता। माय मदर इन लॉ वाज डायग्नोज्ड विद cervical cancer. Okay. Yeah, and I lost her 4 years back. Oh, sorry to hear. Yeah, so I know the journey of like person who has gone through cancer. Like yeah, Like, very painful, and I should say like it just approaches when you are at the last stage, then you got to know we got to know, like me and my husband, we got to know about it when she was at a stage, last stage, yeah, third last stage, third, तो I got to know at that time. और यहाँ मुरादाबाद में पता ही नहीं चला, वो पूरे टाइम ये बोलते रहे कि स्टोन है, स्टोन है। Oh God. Yeah, तो the cancer is like, उन्होंने स्टोन को वो बोलते चले गए। मेडिकल फैसिलिटीज में मुरादाबाद थोड़ा सा भी अभी हमारे मतलब मुरादाबाद में काफी चीजें हैं, होनी चाहिए, हो भी रही हैं। I appreciate Muradabad. Of course, we are living in the same town. Yeah, even though I appreciate Muradabad, like we are just growing city and like changes, very fast changes are we can see. और मगर क्या है कि थोड़ा सा वो एक आजकल एक टर्म है जो बहुत फेमस है हमारे इंस्टाग्राम पे और सब जगह पे, सिविक सेंस। वो बहुत ज्यादा एक मिस है हर जगह। Most people are not using common sense, which is very common these days. Which is not common. अरे which is very common these days. But वो है ना कि सिविक सेंस की वजह से वो लोग ये सोचते हैं कि हर चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट को जिम्मेदार डाल देते हैं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये चीज भी गवर्नमेंट की है, ये भी चीज। Like where is your common sense? Where is your responsibility to look after these things? तो मुझे लगता है कि वो तो थोड़ा सा होनी चाहिए हमारी सिटी में भी, और थोड़ा सा और जगहों पे भी होनी चाहिए। और प्लस हमारी अगर सिटी की बात करें तो मुझे अच्छा लगता है कि लाइक वी आर अ वेरी जेलवेल सिटी ऑल टुगेदर। बिल्कुल। लाइक वी लिव इन अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ कल्चर। Like here we live in a different types of things, but yeah, all are very gel well, all are very mixed, all are very loving, all are very friendly to each other in Muradabad. We can say in our very famous town hall, or you can say in very, yeah, of course, people go and shop and then they just I am the very foodie. I have tasted every corner of town, everything about it. Muradabad is famous for food. See, which food do you like? I like everything. Which? Like if you talk to me for veg, I'll go for like very typical North Indian food. Okay. Yeah, I like dosa.
No, 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 that is South Indian. I don't like South Okay, Indian South food. Indian. Yeah, I don't North like. You like North I Indian? like North Indian, typical Okay. North Indian food. Okay. Yeah, and if you Like talk about that is dal dal makhani. makhani, paneer butter masala, garlic Okay, naan, I will okay, go okay, with okay. that. And if I talk about non-veg, Hmm. then definitely it is also onto my list. The I like biryani, Muradabad biryani. biryani. Muradabad famous for biryani. I have been to number of places where it has been written onto the boards like Muradabad ki famous biryani. Yeah, there are many. And I just watch your reels, so I always just watch that you just mention some of the kind of tagline कि हल्का खाना ही खाती हूँ. हल्का खाना ही खाती हूँ. What is this? एक्चुअली पीपल आस्क मी कि तुम तो बहुत हैवी खाती हो, हल्का खाना खाया करो. तो वो आई हैव मेड इट आउट कि हल्का ही Okay. खाती हूँ, ये Very- मेरा हल्का है. अच्छा ये हल्का है. That's why you just mentioned the tagline हाँ. कि हल्का खाना मेरा. हाँ, हाँ, हाँ. Okay. Hello Whenever I guys. watch, whenever I just go through your that type of status Yeah. or reels, so that I just watch, okay ये क्या है हल्का खाना. हल्का, what is हल्का गाइस खाना? एक बार हल्का और एक और हल्का एक खाना. बार और हल्के की तरफ चलते हैं. अच्छा, तो आप अभी जैसे बोल रहे हो कि दैट यू आर डायग्नोज्ड विद द थायराइड, तो Yeah. उसके लिए आप क्या I am मतलब taking Theranom 0.75 mg. Yeah, I like have. people just take nowadays going for the yoga, I think योगा ladies से मेरा नहीं होगा. योगा से नहीं होगा. योगा से नहीं होगा. क्यों ऐसा मतलब मैंने like एक तो टाइमिंग योगा वाली जो टाइमिंग है दैट इज 4 AM okay और 5 AM. okay और टू बी वेरी ऑनेस्ट माज, आई एम नॉट एन अर्ली राइजर एट ऑल. okay but still you are a obviously educator or like you deal with the education, so you that should is be all different thing. you should That be is all early. that is all different thing. I हाँ. was an early riser when I had my studies. Okay. Okay. So but now it is not Okay. possible. See, I wake up by 6:30 Okay. in the morning. But if you say to run onto the roads, Oh, that is just a waking different, up and yeah, running that onto is the a roads, that is a different thing. Like नहीं हो पाएगा nobody भाई. can't or any, योगा से मेरा नहीं होगा. मैंने वही so बोला. you just take the therapies and all. Yeah, I'm not say therapies. I am having that tablet Okay. and control over my diet, which is Okay. not included for thyroid patient. For Okay. example, I can't have patta gobi, right? Okay. Yeah, I can't have sirka foods, Okay. citrus foods. So I avoid that. Add on Usually something. I avoid that. Viewers will just take your Hmm. opinion seriously, so just add more tips and tricks by which the viewers will take more, obviously, No, and write actually, down all the tips and tricks and your diet बहुत plan. खाइए, बहुत खाइए, अच्छे से खाइए, हेल्दी खाइए, अनहेल्दी भी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बॉडी अपनी है, जब तक रिस्पॉन्ड कर रही है तब तक कर. And why not gym? Gym I have never gone to. Like I don't believe going in gym. If people prefer to have healthy food and on time diet, that all may work. Okay. I have seen 33 springs in my life, right? Okay. I'm 33-year-old. So I would say ki in these 33 years, I have seen lot of things in my life. Lot of things. Like, See, obviously. Yeah, and I also work hard. I work That- hard at my professional place. And I still work you are hard. a strong woman, so that's why you can Thank say. you. I sit with my friends. I have beautiful friends, beautiful Okay. by soul, inside and out. Okay. And I have very close people in my life. With this word friends, so I want to ask you, okay, like what is the role of friendship? Friendship plays a magnificent role in your life. Okay. If you have a very good friend, you will be laughing. मुझे मजा तब आता है जब मेरे दोस्तों को मजा आता है. Okay. क्यों? मुझे ऐसा लगता है अगर हम बैठे अच्छा, हैं. मुझे लगता है कि लाइक फ्रेंड्स वाला जो एक जोन होता है किसी की भी लाइफ में, जी. वो एक ऐसा होता है कि आप किसी भी फेज में हो, किसी भी आप ट्रॉमा में हो, दैट द फ्रेंड फेज कैन ऑब्वियसली ओवरकम दैट पार्ट ऑफ. बिल्कुल. आप उसको ओवरकम कर सकते हो किसी उसमें फ्रेंड जोन में जाके, किसी से बात करके, उसको बुला के, उसके घर जाके. बिल्कुल. और अगर वो आपका ट्रू फ्रेंड है, सो दैट इज के आपके पास एक मान लीजिए डायमंड वाला. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छे दोस्त होने बहुत जरूरी है. और दोस्ती बहुत बड़ा आपके टर्म काफी है. है मुझे लगता है. नहीं, मेरे दोस्त बहुत कम है. मेरी अच्छा. जान पहचान वाले बहुत सारे हैं. अच्छा. मुझे ऐसा लगता है दोस्ती बहुत बड़ा टर्म है, जो कि मैं काफी जगह पढ़ती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. कलीग्स, ओके. ऑफिस सिटर्स, neighbors, these all are just your people. Like, but I cannot count them on every time. Yeah, exactly. I can count on my people, and I have specifically 2 to 3 friends in my life. Okay. Yes.
And I have number of people whom I know, but there are 2 to 3 people who know me. Right? I hope that they should be since childhood. No. Okay. चाइल्डहुड वाले दोस्त तो जो थे वो तो अभी काफी दूर है, दिल से बहुत पास है, वैसे बहुत दूर हाँ, है, वो सबके होते लेकिन हैं। हाँ बातचीत है, टच में है, लेकिन अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है वो मैं उन्हें फोन घुमा के इस समय नहीं बता सकती। तो अभी वो वाला प्यार तो है, लेकिन वो जो एक जोन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वार्म स्पेस। मेरे बहुत अच्छी दोस्तों में से 1-2 दोस्त हैं जिनसे मैं कुछ भी बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता, किसी भी समय फोन करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, तो वो बहुत कम लोग होते हैं। हम सबकी लाइफ में एक आधी लोग होता है, आपकी जिंदगी में भी मेरे ख्याल से 1 या 2 ही लोग बहुत बहुत शॉर्टेज है। बहुत शॉर्टेज है। सी यू कैन काउंट ऑन मी, नो प्रॉब्लम, काउंट ऑन द फिंगर टिप्स, लाइक Exactly. 1 2 एंड आई थिंक कैन बी अ 3 और नॉट। I told वो you वाला ना, वही वाली बहुत कम कंडीशन होते है, हैं। और आई थिंक इट शुड बी लेस। आपके लेस why होने to चाहिए। go for quantity, go for the quality, no? गो फॉर द क्वालिटी, एग्जैक्टली। जरूरत क्या है बहुत भीड़ रखने की, बाकी सब वैसे भी शोर है। क्योंकि द थिंग इज दैट ना कि लाइक आई हैड फ्रेंड्स, बट द थिंग इज दैट के आई ऑल स्टिल काउंट देम इन माय फ्रेंड लिस्ट, बट द थिंग इज दैट के जब आप थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में जा रहे होते हो, उनका डायरेक्शन थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। हाँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, या उनका करियर या कोई भी XYZ कंडीशन जो है अलग पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि या तो आपको स्टिक होना पड़ेगा, या फिर क्या नाम है, सामने वाले को आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में क्या हुआ ना कि मैं अपनी लाइफ में जब अपनी दूसरी डायरेक्शन में चला, मैंने स्टिक होने की कोशिश करा, ऑब्वियसली, नो डाउट, बट द थिंग इज दैट कि दूसरा वाला ने थोड़ा सा एक बैरियर क्रिएट कर लिया। तो वो चीज क्या हुआ कि फिर वो फ्रेंड वाला तो है, ठीक है, आई स्टिल फील फॉर देम, आई स्टिल ऑब्वियसली केयर फॉर देम, आई स्टिल जस्ट want them to be at good place, yeah. ask like multiple people about them के are they all right, are they fine, are they। अच्छा, मेरी तो कभी किसी से वैसे लड़ाई होती ही नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छा तरीका है क्लोजर देने का किसी भी रिलेशनशिप में, इधर इज योर फ्रेंड, इधर इज एट योर वर्किंग प्लेस और वेयरएवर, व्हाट आई विल डू इज आई विल गेट बैक फ्रॉम दैट एरिया। मैं आपसे लड़ने नहीं आऊंगी, मैं आपसे लड़ूंगी मैं तब तक जब तक मैं आपसे प्यार में हूँ। हाँ, जब तक मेरा आपसे अटैचमेंट, तब तक तो मैं आपसे बहस कर रही हूँ, लड़ रही हूँ, लेकिन जब मुझे लगेगा कि अब लेट्स मेक अ फुल स्टॉप हियर एंड इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनीमोर, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट रिमूव माय सेल्फ फ्रॉम द फ्रेम एंड लेट यू सिट हैप्पीली इनटू योर स्पेस एरिया, एंड आई विल नॉट इंटरेक्ट विद यू, आई विल नॉट से एनीथिंग बैड, आई वोंट थिंक इवन बैड। मैं किसी के बारे में खराब मैं सोचती ही नहीं हूँ, अच्छा और खराब तो छोड़ो, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अवॉइड इट, I just avoid everything। और मुझे ऐसा लगता है मैं खुद के साथ बहुत खुश रहती हूँ, तो मेरे पास एक तो समय का थोड़ा सा भाव रहता है। बहुत मुश्किल 1-2 दोस्त हैं जिनसे शाम में उठना बैठना रहता है, मिले, बातचीत करी, हंसे बोले और उसके बाद अपने घर, बाकी पूरी दिन अपना स्कूल में रह जाता है। हाँ, वही एक डेली शेड्यूल, हाँ डेली रूटीन है, उसी को फिक्स कर रखा है। और वो I have a kid also, obviously whom I am supposed to raise in a very good way, तो वही he is a blessing for you, obviously, yeah. And you, I think, love a lot every parent, yeah, exactly, it's a very common thing, yeah. So the Manvi, just for the sake of some kind of things, as a lifestyle expert you are here, so what type of like a cherry on the cake tip do you want to give to the viewers for the lifestyle as a communication? And yeah, you said and you mentioned in your complete podcast that outspoken and all the things, तो वो चीज हमें होना भी चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट द के आपको काउंट करके बोलना चाहिए या नहीं, लाइक इट शुड बी अ कॉन्फिडेंट, जैसे आपने मेंशन भी करा। सारी बातों का सिर्फ एक ही सार है, आप कुछ और किसी और को बनने की कोशिश ना करें, हाँ, आप जैसे हैं exactly. आप अपने आप को वैसे रखें, बी रियल, बी रियल, एंड देन यू विल बी लाइक काइंड ऑफ लोग मुझे एग्जैक्टली आपको आपकी पर्सनालिटी से जानते हैं, मुझे मेरी पर्सनालिटी से exactly. मैं किसी और की कॉपी करने की कोशिश करूंगी या मैं किसी और को इनैक्ट करने की कोशिश करूंगी तो मैं बहुत फर्जी लगूंगी exactly. देखने में भी और सुनने में भी तो लेट्स बी जस्ट रियल, जो जैसा है उसको वैसे रखो ना, क्या प्रॉब्लम है, किसी और की तरह क्यों बनना है exactly. क्यों बनना है। Okay, thank you, Manvi, and have a great pleasure to talk to you. Same here, same. The feeling is mutual, man. Yeah, exactly. Likewise. So all the viewer will obviously praise this conversation and will find out many good things from us, from you, obviously, and we will be like plan some more podcasts with you ahead. Definitely. और हम अपने viewers को यही बोलना चाहेंगे कि just think about the things एंड जो आप चीजें आज आपके पास हैं और जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करें। व्हाट डू यू थिंक? या ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कीजिए और
सबसे तो बेस्ट चीज है हंसना। लोग खुश रहने की एक्टिंग कर रहे हैं, आप हंसो, बोलो, बात करो। जब तक आप हंसोगे नहीं ना, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। और मुझे लाइफ में जो मैंने देखा अब तक, वो लोगों को ऐसा लगता है कि खुश रहने से ज्यादा हंसना जरूरी है। वो फेक आउट कर रहे हैं। आधे लोग तो सब हंसने का नाटक कर रहे हैं, कोई इतना खुश तो कोई है भी नहीं जितना वो दिखा रहा है। तो आप खुश रहो ना, एग्जैक्ट जैसे आप हो वैसे रहो। So that's all I can say. It was good time to be with you. Thank you. And thank you for having me, Maz. Thank you so much. Thank you.